Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Muhammad Qasim Nazir, and in the previous video, we have discussed the objective part. So let's discuss the subjective as well. Um, this is first year chemistry paper, and the first question is calculate the volume of oxygen produced by decomposition of this many formula units of KClO3. सो आपको फार्मूला गिवन है, इक्वेशन गिवन है, आपने क्या करना है? सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री को यूज करके एक रिएक्टेंट के मोल्स को प्रोडक्ट के मोल्स में कन्वर्ट करना है. बट फॉर दैट you need to find the number of moles first. So let's solve this here. Let's move to a blank page and let's solve it here. So first thing first, this is the equation you are given. KClO3 gives you KCl and O2. If you balance the equation, you write 2 here and 2, 3 here and 2 here. So this equation is already given. Now what else you are given? You are given the number of particles, 3.04 3.04 times 10 to the power 24. So basically, these are called formula units. You know, this is an ionic compound, so that's why we use the term formula unit instead of molecules. Now what? First, you need to find the number of moles. How do you find number of moles? आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को by Avogadro's number 6.022 into 10 is to power 23. Now, by mental math, I could tell 6 times 5 is 30, so this is gonna be 5 moles. Okay, so you got the number of moles. Now, you have to find the number of moles of product. आपसे किस चीज के मोल्स के बारे में पूछा गया है? आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन के वॉल्यूम के बारे में. सो सबसे पहले आपने कंपैरिजन करना है KClO3 एंड ऑक्सीजन का, एंड द रेशियो इज 2:3. राइट नाउ व्हाट? अब आपने करना ये है कि इसमें 1:3/2 हो गया and 5:3/2 times 5. So what do you get? 5 times 3 is 15. 15 times 2 is 7.5. So your answer is 7.5 mole. ठीक है? You got the number of moles of oxygens now. This was the first step. This is the second step. And the third step is to find the volume. Now look at the conditions. The conditions are not given. So you can either assume STP or RTP. Most probably we use STP, so we will use the molar volume of 22.414. So you know that 1 mole of any gas contains 22.414 dm cube, and we have 7.5 moles of O2. So you have to multiply 22.414 by 7.5, and that will get you the final answer, and that is, let me calculate that. So it will be 22.414 times 7.5, 168 dm cube, 168.1 dm cube. So let's write it here, 168.12 dm cube. Now what? Let's calculate the second part is also a numerical. Calculate the wave number of H alpha in Balmer series and second line in Pascal series. So first thing first, Lyman series और बाल्मर सीरीज बेसिकली आपके पास टोटल 5 सीरीज होती हैं, जिसमें बाल्मर सीरीज इज द सेकंड एंड पास्कन सीरीज इज द थर्ड. सो सबसे पहला काम आपने करना है एच अल्फा यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज. तो बाल्मर सीरीज सेकंड सीरीज है, उसकी फर्स्ट लाइन का मतलब है 2+1 एंड 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में जंप करना है, और एंड 2 जो है वो 3 हो जाएगा. और आपने फार्मूला क्या लगाना है,
wave number equals to Rydberg constant into 1 over n1 square minus 1 over n2 square. इस फार्मूले को आपने यूज करना। वेयर एज द सेकेंड लाइन ऑफ पास्कल सीरीज इज द थर्ड सीरीज और उसकी सेकेंड लाइन मतलब 3 + 2 5। तो n1 हो जाएगा 3 और n2 हो जाएगा 5, जैसे कि एमसीक्यू में भी आया था। तो अगेन एक ही फार्मूले में ये दोनों वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकालना है। All right. Next question is, in an industrial process, 40 grams of hydrogen produces 100 grams of ammonia. Calculate the percentage yield of this reaction. सबसे पहले आपने theoretical yield निकालनी है। आपके पास 40 grams हैं हाइड्रोजन के। आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको उसके किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के मोलर मास से, जो कि 2 होता है। तो आपके पास आ जाएंगे 20 मोल्स। अब आपने देखना है कि what is the ratio between hydrogen and ammonia. So the ratio is 3:2. So what about 20 moles? 20 moles give you how many moles? This is the question. So you can cross multiply. So you will get like 3x equals to 2 times 20, और जो कि हो जाएगा 3x equals to 2 times 20 is 40, and x equals to 40 times divided by 3. So that is 40 divided by 3 is 13.3. Now this is the number of moles. You have to convert that into mass by multiplying with the molar mass 17. So multiply by 17, you get 226 grams. This is the theoretical yield एंड दिस इज द एक्चुअल यील्ड। सो अब आपने परसेंटेज फाइंड करते हुए क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय 226 टाइम्स 100। सो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 226 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हो जाएगा 44.25%। Next is justify the following statements with reference to azimuthal quantum number. So S azimuthal quantum number is the second quantum number that represents subshell, और उसके लिए आपने क्या करना है, एक फार्मूला यूज करना है 2 into 2l+1, और s के लिए l की वैल्यू 0 पुट कर देनी है तो आंसर 2 आ जाएगा, और p के लिए l की वैल्यू 1 पुट कर देनी है तो आंसर 6 आ जाएगा। सो एक नंबर फार्मूला का है और 2 नंबर आपके ये जो आपने सॉल्व करना है, 2 पार्ट्स उसके हैं। नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 गैस इफ इट्स वॉल्यूम इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 5, ये मेरे ख्याल आपकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज में भी है। 500 सेंटीमीटर क्यूब को आपने डिवाइड कर लिया 22414। मैं डेसिमल नहीं लगा रहा क्योंकि मैं मोलर वॉल्यूम को भी सेंटीमीटर क्यूब में रख रहा हूँ। तो जब 500 को 22414 से पहले स्टेप में आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है अवोगाड्रो नंबर से, जो कि 6.022 into 10⁻23 होता है। तो वट एवर यू गेट इज योर आंसर। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर एंड H2O इज बेंट, तो आपने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स की टर्म्स में बता देना है। एटॉमिसिटी दोनों की सेम है, दोनों ट्राई एटॉमिक है, डेट इज ट्रू। यही थोड़े से अल्फाज चेंज करके आपके पास पेपर में भी मौजूद है कि, लेकिन चलें इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ यानी कि 2 डबल बॉन्ड्स हैं, जो कि बॉन्ड पेयर्स 2 बॉन्ड पेयर कंसीडर होंगे बिकॉज डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड। जबकि वाटर में जो सेंट्रल एटम O है उसके पास ना सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं बल्कि 2 लोन पेयर भी हैं। सो द डिफरेंस इज कि वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है। सिंस लोन पेयर्स कॉजेज मोर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर, और इसी वजह से क्या हो जाएगा कि इनकी शेप्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। आप इसमें एंगल वगैरह मेंशन कर सकते हैं, बट दैट विल बी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मेन चीज ये लोन पेयर्स और इनकी रिपल्शन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है कि इसमें 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंसीडर होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट होंगे, क्योंकि हमने याद रखना है डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पे आई गेस मिस्टेक हुई है, दिस इज CH4 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको गिवन है CH4, अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और आपके पास CH4 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने इसके मॉलिक्यूल से
फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल। सबसे पहले आपने इन मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपने इसको डिवाइड करना है अवोगाड्रो नंबर से, जो कि होगा 6.02। सारे न्यूमेरिकल्स एक जैसे ही हैं। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स 8 जो है 48 होता है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 8 मोल्स। मेंटल मैथ अगेन इंटी टेस्ट में काफी हेल्प करता है आपकी, बट फॉर नाउ यू कैन रिलाई ऑन योर कैलकुलेटर। नाउ you have 8 moles of CH4. You can look at the ratio in the balanced equation. The ratio is 1:1. So अगर आपके पास 1 मोल है CH4 का, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो 8 मोल CH4 के हैं, तो 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने 1:1 और 8:8 कर देना है। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपने अवोगाड्रो नंबर से 8 को मल्टीप्लाई करना है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आप फाइंड कर सकें। सो 8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 6 8 जा 48, तो एग्जैक्टली यही आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन आप इसको 3 स्टेप में करेंगे, ताकि आप जो है वो 3 मार्क्स सिक्योर कर सके। ठीक है, तो 4.8 इंटू 10 to 24 ही आंसर आ जाएगा। ड्रॉ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। SO2 जो है ये मैं बता चुका था गेस्ट पेपर में भी कि एक क्वेश्चन कंफर्म आता है शेप्स में से, और यही हुई पास पेपर्स में से आया है, एक्सेप्ट CBr4 जिसमें सिर्फ Br को रिप्लेस किया Cl की जगह पर। तो SO2 की आपने क्या बतानी है, शेप्स बतानी है। तो ये बेंट या वी शेप होगा, एंगल भी बता दें 120 से कम होगा। H2S की भी बेंट या वी शेप होती है, लेकिन एंगल यहाँ बताएंगे तो क्लियर होगा कि इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो इसमें एंगल 104.5 के आसपास होगा। CBr4 इज मोर लाइक CH4 या CCl4, तो ये क्या होगा, इसमें टेट्राहीड्रल शेप होगी और 109.5 जो है वो एंगल होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने Br बनाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग लाइन स्पेक्ट्रम। वो होता है जिसमें आपके पास क्या होता है, इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, जिसमें गैप्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड बाउंड्री लाइंस कैन बी मार्क्ड। स्टार्क इफेक्ट को आप टोनी स्टार्क से याद रख सकते हैं, आयरन मैन का रोल जिसने प्ले किया था, कि लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ताल्लुक है टोनी स्टार्क से, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि जी आयरन मैन का जो सूट है वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है, ऑफ कोर्स, सो यू कैन जस्ट रिलेट दैट। सो आयरन मैन और जी मैन, सॉरी, स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एनीवेज, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें बाउंड्री लाइंस कैन बी मार्क्ड और देयर आर गैप्स बिटवीन द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ या डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये आपने डिफरेंस लिख देना है, या इसकी बस एक लाइन की एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस आपको अच्छे से पता है कि एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई वीक होता है, क्योंकि एक में ज्यादा ओवरलैप होता है और दूसरे में कम। एक में जो है वो बॉन्ड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में अबव और बिलो या फ्रंट या बैक पे होते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंसेस हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगे बुक के अंदर भी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर at sea level at 0 degree Celsius if density of air is 1.29 kg per meter cube। देखिए, जो डेंसिटी का फार्मूला है वो है PM over RT। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है, एवरेज मोलर मास यानी कि M फाइंड करना है। तो M किसके इक्वल होगा, M का डायरेक्टली लिख लेते हैं कि DRT/P, ये फार्मूला है। अब डेंसिटी तो आपको गिवन है, लेकिन एक मसला है कि डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में गिवन है। अब इसके यूनिट्स जो है वो कुछ मैच नहीं कर रहे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम जब भी यूनिट लेते हैं तो हम ग्राम्स लेते हैं, और अगर हम आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है हम उसको मोस्ट प्रोबेबली डेसीमीटर क्यूब में देते हैं। अब यहाँ पे एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो आप आर की 0.0821 अगर आप वैल्यू लेते हैं, तो फिर आपको मास को ग्राम्स में और डेंसिटी को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए किलोग्राम से ग्राम में जाते हुए आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर क्यूब से डीएम क्यूब में जाते हुए आपको फर्दर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये याद रखना। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा, तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा हल ये है कि आप जो है सिर्फ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लें और आर की एसआई वैल्यू को यूज कर लें, जो कि है 8.31
3 जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू आप यूज कर लें। तो लेकिन आपके पास यही फार्मूला यूज होगा, इसमें डेंसिटी ये है और आर की वैल्यू आपने चूज करनी है और टेम्परेचर को केल्विन में 273 लिखना है। कैलकुलेट द एवरेज, मतलब सी लेवल पे एयर का प्रेशर 1 एटीएम होता है तो वो 1 एटीएम आपने ले लेना है। उसके बाद जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि पेट्रोल इवेपोरेट्स अर्लियर देन वाटर बिकॉज पेट्रोल हैज ओनली, अच्छा ये नहीं कहना कि पेट्रोल में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं और वाटर में वो नहीं होती। Every substance have London dispersion forces, but petrol has the only forces present in petrol is London dispersion forces, whereas the water contain hydrogen bonding as well. That is the strongest forces. तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और इसकी वजह से ये कम इवेपोरेट करता है। Water has low vapor pressure than ethyl alcohol. Same reason. Water has hydrogen bonding, stronger hydrogen bonding. इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल होते हैं और इथाइल अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वी रिक्वायर मोर हीट टू इवेपोरेट लेस वाटर and which results in less vapor pressure. What is the effect on the volume of gas if you simultaneously? Okay, तो ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो पहले एमसीक्यूज में आते थे। मेरे गेस के मुताबिक इनको एमसीक्यूज में आना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके। अब आपने इसको प्रूव कैसे करना है? बेस्ट तरीका होता है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। अब इसमें आपने करना ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जी वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट है। वॉल्यूम को एक साइड पे ले जाए आप, तो ये हो जाएगा एन आर टी बाई पी। क्या हो जाएगा? एन आर टी बाई पी। अब आपने करना ये है कि इसमें मजीद आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिर्फ टी और पी को निकाल लें तो हो जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। हमारा ताल्लुक सिर्फ इन दो चीजों के साथ है। सो पहले पार्ट में कह रहे हैं कि प्रेशर को हाफ कर दें, तो प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दें हाफ से, और दूसरे में आपसे कह रहे हैं कि केल्विन टेम्परेचर को डबल कर दें, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। तो बताएं 2 डिवाइडेड बाय हाफ कितना होता है? तो आपने कह दिया ये तो सर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है। वेरी गुड। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, यानी कि 4 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसमें आपने बताना है कि 4 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दूसरे में कह रहे हैं प्रेशर को डबल करें। दोबारा देख लेते हैं जी। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और हम प्रेशर को डबल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें आप, एरो की जगह आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, और वॉल्यूम को भी डबल कर रहे हैं तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और इसमें आ जाएगा नो इफेक्ट। ठीक है। सो वाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर, क्योंकि वेपोराइजेशन में आप लिक्विड से गैस में जा रहे हैं और फ्यूजन में आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं। लिक्विड से गैस में जाते हुए देयर आर मोर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और मूवमेंट। जबकि सॉलिड से लिक्विड में जाते हुए मूवमेंट में भी बहुत कम इजाफा हो रहा होता है और गैप्स भी बहुत कम बढ़ रहे होते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बहुत कम ब्रेक हो रही होती हैं। तो ये रीजंस हैं जिसकी बेसिस पर आपने एक्सप्लेन करना है। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट R फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था कि एसआई यूनिट आपने बता दिया 8.3143। इसके यूनिट है न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है। प्रेशर इन एटीएम एंड वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, तो दूसरा यही दो वैल्यूज मैंने आपको गैस में बताई थी जो इंपॉर्टेंट है। 0.0821, इसको मैं याद करने के लिए अक्सर कहा करता हूँ कि व्हाट इज योर कॉलेज टाइमिंग। तो नॉर्मली ये 21 होती है जैसे आजकल है तो स्कूल्स की, तो आप उससे याद रख सकते हैं 821, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होती है न्यूमेरिकल्स में। एटीएम डीएम क्यूब पर मोल, ये आपने सिर्फ लिखनी नहीं है, डिराइव करनी है। यू नो हाउ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के जरिए। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, यही कि ग्लो करता है, हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर की बात नहीं करनी तो कह लें अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 बातें हो गई। उसके बाद है जी प्रेडिक्ट द शेप ऑफ जेड एंड एस, यहाँ पे एस कैपिटल होना चाहिए, टाइपो एरर है। बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेडियस रेशो। रेडियस रेशो का फार्मूला ये आर आर मतलब रेडियस रेशो इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैटाइन ओवर रेडियस ऑफ एनाइन। अब कैटाइन का रेडियस कितना है? 74 पिकोमीटर। ठीक है, और यूनिट सेम हो तो बस इट्स ओके। और इसका है 184। सो आपने जो है इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4। तो उस हिसाब से आपने देख लेना है कि इसकी शेप आई गेस 0.4 से 0.7 तक टेट्राहेड्रल होती थी, तो आपने उस टेबल के अकॉर्डिंग इसको बता देना। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आता है, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 इज in moles is A and X moles of it is converted to NO2, then derive the general relation of equilibrium। तो ये आपकी बुक में सारी डेरिवेशन दी हुई है। अगर आपको मैं रेफरेंस दे दूं तो आपने चैप्टर 7 में जाना है, उसमें आपने रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम में जाना है, उसमें टाइट्रेशन से पहले आता है टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें ये पूरी डेरिवेशन गिवन है। मैं यहाँ पे भी डिराइव कर सकता हूँ, बट इसमें आपने आइस टेबल का इस्तेमाल करना है। अब व्हाट इज आइस टेबल? तो आपने बताना ये है कि इसमें इनिशियल, चेंज और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये तीन चीजें आपने करनी होती हैं, और इस तरह से आइस टेबल के जरिए आपने इसको सॉल्व करना होता है। Calculate the value of Kp at 1050 degrees Celsius if Kc is 2.3 times 10 to the power 22। तो इसमें बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, आपने Kp फाइंड करना है और आपको Kc गिवन है। तो सिंपल फार्मूला ये है कि Kp इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। अब इसमें डेल्टा एन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 + 1 3 है। तो 2 - 3 -1 हो जाएगा डेल्टा एन। आर की वैल्यू वही टिपिकल 0.0821 हो जाएगी। टी की वैल्यू 1050 चेक कर लीजिएगा पेपर में, यही टेम्परेचर है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें। देयर माइट बी सम टाइपो एरर 105 या कुछ भी, तो जो भी टेम्परेचर है इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें। और उसके बाद जो है आपने सॉल्व कर लेना है केसी की वैल्यू को पुट करके। राइट केएसपी एक्सप्रेशन, तो केएसपी में आपने जो आइंस होते हैं उनको लिखना होता है। तो इसका हो जाएगा कि कैल्शियम के कितने आइंस हैं, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, लेकिन ये 3 है तो पावर 3 हो जाएगी। और फास्फेट का जो चार्ज होता है वो -3 होता है, लेकिन इसकी पावर 2 हो जाएगी, भी 2 है। जबकि इसी इसमें, हाँ, जबकि यही के एस पी एक्सप्रेशन अगर आप लिखें Na2SO4 का, तो Na पे चार्ज +1 होता है, लेकिन ये 2 होंगे। सल्फेट पे चार्ज -2 होता है और ये 1 ही होगा। ये आपने बस लिख देना है, चाहे तो इक्वेशन भी लिख दें, इट विल बी इवन बेटर। व्हाट इज लेवलिंग इफेक्ट? आपको पता है कि वाटर एज अ सॉल्वेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस, एंड दिस इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट। और इसका हल है कि हम वीक एसिड या वीक बेस को यूज करें व्हाइल डिफरेंशिएटिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट लाइक एसिटिक एसिड। सो ये आपने बता देना है। ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ये आपकी बुक में 2 डायग्राम्स थी कोलिन थ्योरी वाले टॉपिक में, एक एंडोथर्मिक के लिए और एक एक्सोथर्मिक के लिए, जिसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच, उन सबको आपने लेबल करना है। उसके बाद है रेट इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन R इक्वल्स टू K into NO की पावर 2 and H2। रिएक्शन occurs in two steps and oxygen atom is intermediate। सारा कुछ तो मैं बता दिया है, अब मैकेनिज्म लिखना है। तो आपको बता रहे हैं कि जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप में आपने क्या करना है, ये रेट लॉ को देखकर 2 NO के मॉलिक्यूल और एक H2 का मॉलिक्यूल लिख लेना है। और जो फर्स्ट स्टेप है, जो भी दूसरा स्टेप है, क्योंकि मेरा 2 स्टेप है, तो आपने बता दिया कि उसमें क्या बच जाएगा। अब नेट रिएक्शन में देखें तो इसमें 2 NO हैं, दोनों यूज हो गए, और 2 H2 में से एक H2 जो है यहाँ पे बच जाएगा। अब नेट रिएक्शन में देखें कि आपके पास N2 बनना चाहिए, तो N2 पहले स्टेप में ही बन सकता है क्योंकि रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन पहले स्टेप में है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोनों एक स्टेप में तो नहीं बन सकते, तो एक इस स्टेप में बनेगा और दूसरा अगले स्टेप में बनेगा। और उन्होंने कहा है कि पहले स्टेप में जो इंटरमीडिएट है वो एटॉमिक ऑक्सीजन है, तो वो एटॉमिक ऑक्सीजन अगले स्टेप में यूज भी हो जाएगा और वो बना देगा वाटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो नेट रिएक्शन वही आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएगा और बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म है, आपने ऐड करके भी दिखा देना है, ये 2 स्टेप और फिर ऐड करके दिखा देना। सो हाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसमें आपने वो वाला फार्मूला डिराइव करना है जिसमें डेल्टा P इक्वल्स टू P नॉट इनटू H2 की जगह पे आपके पास आता है W2M2, और यहाँ पर आपके पास आता है W1 और M1। ये वाला फार्मूला आपने डिराइव करना है और इसमें M2 के लिए इसको रीअरेंज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है हाँ, डिस्क्राइब फिनोल वाटर सिस्टम। ये कई दफा मैं आपको बता चुका हूँ। अपर कंसल्यूट टेम्परेचर वो होता है जिसपे 2 इमिसिबल पार्शली मिसिबल लिक्विड्स मिलकर एक कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं या एक सिंगल लेयर बना देते हैं, और आई गेस 68.5 डिग्री सेल्सियस इसका अपर कंसल्यूट टेम्परेचर था। फिनोल वाटर सिस्टम, जिसको हम कॉन्जुगेट सिस्टम भी कहते हैं, वो अपने बुक से कॉपी पेस्ट कर देना, चैप्टर 10 में है। राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशंस फॉर द गिवन टेम्परेचर्स। अच्छा जी, टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर मतलब एंथैल्पी चेंज, और आपने रिएक्शन लिखना है। थेरेपी ऑफ फॉर्मेशन, तो आपने कैल्शियम जो कि सॉलिड होता है उसको कार्बन जो कि सॉलिड होता है और ऑक्सीजन जो कि गैस होती है, ठीक है, इन सब को जोड़ना है और बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट
और फिजिकल स्टेट लिखना लाजमी है, तो वो सॉलिड होगा। अब इसमें आपने बताना ये है कि बैलेंस नहीं है, तो कैल्शियम और कार्बन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो आपने होल नंबर्स में बेशक ना आए आंसर, लेकिन आपने प्रोडक्ट में एक मोल ही बनाना है। तो हमें चाहिए 3 ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो ये तो 6 हो जाएंगे, तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और इसके साथ आपने डेल्टा एच की ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, आगे लिखना है इस सेक्शन के बाद डेल्टा एच, क्योंकि थर्मोकेमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू लिखी हुई हो। तो आपने डेल्टा एच लिखकर -1207 केजे पर मोल ये आपने लिख देना। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस, तो इसमें आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, फिजिकल स्टेट गैस होगी, और आपके पास 2 ही वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन जाएंगे। बाकी रही बात ऑक्सीजन बैलेंस करने की, देयर आर 2 ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट वाटर में और 4 यहाँ पे, तो टोटल 6 ऑक्सीजन है। 6 में से 2 जो है वो तो एसिटिक एसिड में है, पीछे 4 रहेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके आगे ये डेल्टा एच की वैल्यू आपने लिख देनी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, कैलकुलेट ई नॉट फॉर लिथियम जिंक सेल एंड राइट सेल इक्वेशन, जब जिंक की वैल्यू -0.76 है और दूसरे की वैल्यू भी आपको आई गेस गिवन है। तो आपने सिंपल बड़े में से छोटे को निकाल देना है, जो कि फार्मूला है ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और मैंने क्लास में बताया था सिंपल मेथड कि आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकाल दें आंखें बंद कर। ठीक है, सो राइट केमिकल रिएक्शंस, ये लिथियम सेल बैटरी आजकल जो हम यूज कर रहे हैं, ये उसी के बारे में बात हो रही है। राइट केमिकल रिएक्शंस दैट अकर एट कैथोड एंड एनोड इन अल्कलाइन ड्राई सेल, कॉपी पेस्ट है, मैंने आपको इसकी ट्रिक्स बताई थी कैसे याद रखना है, बट आपने अल्कलाइन ड्राई सेल वाले रिएक्शन लिखने हैं जिसमें KOH जो है वो इलेक्ट्रोलाइट था, याद रहे। आपने सिंपल ड्राई सेल वाले नहीं लिखने जिसको लैग्रांजियन सेल भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट NH4 था, NH4Cl, वो नहीं लिखना है, KOH वाला लिखना है। ठीक है, उसके बाद जी सेक्शन सी पे आ जाते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4। तो इसमें आपने बता देना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, वो सारा आपने बता देना है। रियल गैसेस क्यों डेविएट करती हैं लो टेम्परेचर पे, क्योंकि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, और हाई प्रेशर पे क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है जो KMT के पास्टुलेट के मुताबिक नेग्लिजिबल होना चाहिए, वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। और फिर ग्राफ बना देना है वो पीवी, वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला PVRT, जो कि जिसका स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आइडियल गैस के लिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को एक्सप्लेन कर देना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और हीट और वर्क के साथ आपने साइन कन्वेंशन भी बता देनी है और प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी बता देना, सारा कॉपी पेस्ट है। बैलेंस द इक्वेशन, इसको आपने बैलेंस करना था ऑक्सीडेशन नंबर के जरिए, जो कि आपको पता है। अगर हम यहाँ सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हम जल्दी से इसको करने की कोशिश कर लेते हैं कि नाइट्रोजन का चार्ज होता है +5 और यहाँ पर नाइट्रोजन होता है +2, यहाँ पर सल्फर होता है -2 और यहाँ होता है 0। अब क्योंकि नाइट्रोजन +5 से +2 में जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है, और सल्फर -2 से 0 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी की क्यूएन को आप खुद ही बैलेंस कर लें कि कितने हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं। 3 टाइम 2 6 इंटू 8 हाइड्रोजन हैं, तो हमें 4 वाटर चाहिए, ये बैलेंस हो गई। आपने पूरा डिटेल में करना है, दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन। फास्फोरस 0 से +5 में जा रहा है और नाइट्रोजन +5 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। 0 से +5 में 5 इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन +5 से +2 में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 और 3 तो मैच नहीं करते, तो 5 जो 3 वाला है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 5 वाला है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अब बाकी वाटर है वो आप बैलेंस कर लें, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन किसी को भी देख के। तो राइट साइड पर आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 3 टाइम्स 3 9 है, लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 5 आ चुके हैं, तो आपको 4 और वाटर चाहिए, तो ये इक्वेशन बैलेंस इस तरह से होगी। प्रॉपर मेथड आपने करके दिखाना है, मैं जस्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। What is buffer solution? Write its types with composition. ये कॉपी पेस्ट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जब ऐड करते हैं, बफर एक्शन भी आपने एक्सप्लेन करना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो बतानी है, जिसमें आपने ये भी कॉपी पेस्ट है, और डेरिवेशन करनी है जो उसकी एप्लीकेशन थी, जिसमें आपने फाइनल एक्सप्रेशन तक लेके जाना है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, उसके फैक्टर्स, ये मैं आपको बता चुका था, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर में भी था ये। और 3 ही फैक्टर्स हैं, तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन CCP और HCP, ये भी मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ। एक को ABC ABC और दूसरे को AB AB
भी कहते हैं, और वो सारा डिफरेंसेस कि किसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल होते हैं और किसमें जो है क्यूबिक वॉइड्स जो है फिल होते हैं। तो उसके बाद आता है कंपेयर मेटालिक सॉइल्स। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला